In the overview of Science of Universe versus Inner Science, the Spiritual Journey of Life, Shiv Shakti Manifestations Part 4, Poetic Expression with Illustrations. Appreciation. We craft for our conversation about the issue and preparation to face it with joint wit, but the bond of reality succeeded to outwit the hypothetical plan. Though I found echo of the same in clarification given by my dame, I found my heart expressed in her words and hope. I am not angry with anything nor the envelope, but nonplussed with antithesis profane. We being a part of society can't face its oddities. I feel frustrated at the word pros and you as suffocating entities. It makes me feel my failure as a guide and shakes my confidence and long-fed pride of one who wants to raise you to the level of zenith. Shiv longs to fulfill his promise in vain as he is impressed by Sati's dedication, longing and bold struggle, materializing her domain. What to say of her, Sati's vows to spend even a lifetime like Radha, and of her astounding affirmations to separate Lakshmi Narayan, Shiv Shakti and Brahma Saraswati if she fails to actualize her long cherished Shiv Shraddha. Appreciation. Illustrations. Differentiation at the plane of spirit over. Now the struggle at the plane of body or society. Eternal bond gaining strength. In spite of the distraction at family, society and worldly level, their love at spirit level gets boosted. Sati is ready to shatter all the cycles to materialize her unification with Shiv. The family, society and humanity pose obstacles. So Sati becomes aggressive and impatient. Hence, Shiv discusses their destined meeting, appreciates Sati's stand for this. Shiv is firm, so encourages her and warns her against negative attitude in life and clears his side too. Sati's astounding vows get reflection in Shiv too. Finally, he affirms that they should proceed because their bond is invincible. To put it in different words, दूसरे शब्दों में, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात उस प्रकाश पुंज एवं ऊर्जा पुंज के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में या किसी भी ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है मात्र उसकी अभिव्यक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि यह प्रकृति क्या है? तो दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते। अर्थात यह त्रिगुणमयी तीन गुणों से युक्त मेरी माया अर्थात प्रकृति, मेरी जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति बहुत ही दुष्कर है, परंतु जो मेरा ही निरंतर ध्यान करते हैं वो इस माया से, इस प्रकृति से तर जाते हैं। यह प्रकृति, यह माया क्या है? वास्तव में यही हमारे डीएनए और आरएनए से उत्पन्न जितनी भी हलचलें हैं, प्रवृत्तियां हैं, वही माया का कृत्य है जो हम पर इम्पोज्ड हो जाता है, हावी हो जाता है। शरीर, मन और बुद्धि की प्रवृत्ति, प्रकृति एवं आवश्यकताओं से उत्पन्न बंधन व अज्ञान परम प्रकाश एवं ऊर्जा पुंज को आच्छादित कर लेते हैं। परंतु यदि उस पुंज का निरंतर अनन्य भाव से चिंतन किया जाए तो अज्ञान का यह आवरण भेदा जा सकता है और उस परम प्रकाश पुंज का दर्शन प्राप्त हो सकता है। शिव जी के सहयोग से सती अज्ञान के घने आवरण को काटने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं, क्योंकि बंधनों की घनी छाया में होते हुए भी सती को अपने अनंत प्रेम का बोध रहता है और इसी के सहारे वह शिव से एकाकार होने के लिए आगे बढ़ती हैं। सती को लगता है कि शिव ही उनका गंतव्य है। वह भौतिक रूप से भले ही
उनसे दूर हो गई हैं या कर दी गई हैं, परंतु मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक रूप से वह सदा शिव की यादों में ही खोई रहती हैं। वह शिव को अपने वचनों से अपने दृढ़ प्रेम का बोध कराती हैं। वस्तुतः शिव शक्ति या जड़ चेतन या द्वैत अर्थात प्रकाश व ऊर्जा पुंज और ठोस पिंडों के बीच का जो यह आपसी एकत्व भाव है और एकीकरण है, इसी से सारे सांसारिक बंधन छंटते हैं। यही सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति है, यही जड़ और चेतन का अनंत प्रेम है। We craved for conversation about the issue and preparation to face it with joint wit, but the bond of reality succeeded to outwit the hypothetical plan. ये पंक्तियाँ डीएनए व आरएनए से उत्पन्न शरीर, मन व बुद्धि के माध्यम से संचालित सांसारिक घने बंधनों की छाया को व्यक्त करते हैं। शिव एवं सती भी इस बंधन की छाया में आ जाते हैं। देखिए कि वो किस प्रकार से विचार विमर्श करने चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि एकजुट होकर के इस सांसारिकता का सामना करें, लेकिन यह सांसारिकता इस प्लान को भी, इस हाइपोथेटिकल प्लान को भी, उनके अनंत प्रेम को वो विफल कर देती है। ऐसा उनको प्रतीत होता है। Though I found echo of the same in clarification given by my dame, I found my heart expressed in her words and hope. I am not angry with anything, nor the envelope, but nonplussed with antithesis profane. इन पंक्तियों में टेलीपैथिक एक रूपता एवं अनन्य प्रेम की स्वीकृति का स्पष्टीकरण शिव जी देते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों के बीच में जो हम सोचते हैं वही स्पष्टीकरण तुम्हारे द्वारा दिए गए शब्दों में पाया गया, और हमारे दिल की सारी बातें तुम्हारे शब्दों में व्यक्त हैं। हमको किसी भी प्रकार का कोई भी दुराव या नाराज़गी नहीं है, परंतु हम इस सांसारिकता से किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। We being a part of society can't face its oddities. I feel frustrated at the word pros and you as suffocating entities. It makes me feel my failure as a guide and shakes my confidence and long-fed pride of one who wants to raise you to the level of zenith. शिव जी इन पंक्तियों में सती को निगेटिव एटीट्यूड के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इस संसार में आने के साथ ही साथ हम इस समाज के एक अंग बन गए हैं, और इसकी ऑडिटीज़ को, इसके रीति रिवाजों की ऑडिटीज़ को, उतार चढ़ावों को हम ऐसे नहीं फेस कर सकते, इससे टकरा नहीं सकते, बल्कि इससे सामंजस्य ही स्थापित करना अच्छा है। इससे टकरा कर फ्रस्ट्रेट होकर के अपने अनंत प्रेम की आदतों और अपनी अभिव्यक्ति के बारे में निगेटिव भाव रखना अच्छी बात नहीं है। इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ने लगता है, हमें अपनी असफलता का बोध होने लगता है, और ये हमारे आत्मविश्वास और शाश्वत स्वाभिमान को हिला देता है। हम लोग तो इस संसार में आए थे उस अनंत यात्रा के लिए, उस यात्रा के लिए जो हमें अपने या आपको प्रकाश पुंज और ऊर्जा स्वरूप तक पहुंचा दे, जेनिथ तक पहुंचा दे। इसे मत भूलो। Shiv longs to fulfill his promise in vain, as he is impressed by Sati's dedication, longing and bold struggle materializing her domain. What to say of her vows to spend even a lifetime like Radha, and of her astounding affirmations to separate Lakshmi Narayan, Shiv Shakti and Brahma Saraswati if she fails to actualize her long cherished Shiv Shraddha. इन पंक्तियों में शिव जी किसी भी प्रकार की वचनबद्धता या वादे की निहितार्थता को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि शिव जी सती की भक्ति से, उनकी प्रबल इच्छा से और
उनके इस परम तप से जो अपने परम प्रकाश स्वरूप और अपने गंतव्य को पाने की इच्छा से कर रही हैं, उससे बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं। और इसके अतिरिक्त सती के उन वादों या आस्टाउंडिंग अफर्मेशंस की क्या कहा जाए, जिसमें वो कहती हैं कि हम एक लाइफ टाइम राधा जैसा भी बिता सकते हैं, और यदि मैं इस लांगचे श्रद्धा में अपने अनंत प्रेम को शिव के प्रति नहीं एक्चुअलाइज कर पाई तो मैं इस सृष्टि को ही नष्ट कर दूंगी, अर्थात लक्ष्मी नारायण शिव शक्ति और ब्रह्मा सरस्वती सबको अलग कर दूंगी, अर्थात सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। इस प्रकार से स्ट्रगल एट बॉडी प्लेन एंड सोसाइटी strengthens their eternal bond. It could do nothing wrong to their eternal love that leads to the ultimate meeting.